before we proceed, I would like to ask few questions from you all. So can you tell me that what do humans need to survive? Food, air, water. Yeah, very good. And can you tell me that by which actions human take air inside the body? Respiration process. Yes, very good. Okay, so students, can you tell me something about respiration? Like something about this process? No idea, ma'am. Okay, not an issue. So students, today we will study about respiration under subject biology. Respiration process under subject biology. Start. Okay, so respiration, the process of breathing, that is inhalation and exhalation of air, is known as respiration. What? It is the process of inhalation and exhalation of air. Okay, so this is in terms of layman language. जब हम किसी साधारण मनुष्य की उसमें बात करते हैं तो this is the process of breathing. But when we talk in terms of bio, so in terms of bio, the process of respiration is a sum of all the physical and the chemical process in an organisms in which oxygen is carried out to cells and CO2 and H2O are taken off from the body. So I will tell you with the help of a reaction what happens inside the body. Okay, so as we know, C6H12O6, this is the formula of glucose. So what happens when we do respiration, जब हम breathing करते हैं, O2 inhale करते हैं, so जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, दिस इज ग्लूकोज. ओके, सो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या करता है, ये इसको ब्रेक करता है. तो ब्रेक करने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी से एनर्जी तभी जनरेट होती है जब ऑक्सीजन इसको जाके ब्रेक करेगा. तो ये क्या करेगा, ये रिलीज करता है CO2 प्लस ये रिलीज करता है H2O प्लस एनर्जी. इसका मतलब कि हमारी बॉडी से CO2 जो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का, वो निकलता है, एंड H2O वाटर निकलता है, एंड साथ में हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती है जिसकी हेल्प से हम काम कर पाते हैं कोई भी. ओके, सो स्टूडेंट्स, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज रेस्पिरेटरी रेट, या हाउ मेनी टाइम्स डू वी ब्रीथ इन अ मिनट? एनी आइडिया? Ma'am, around 15. Yeah, very close. So we breathe around 20 times per minute. हम एक मिनट के अंदर 20 बार सांस लेते हैं. फाइन. ओके, so students, there are basically two types of respiration. One is aerobic and second is anaerobic. Okay, one is aerobic respiration and the second is anaerobic respiration. Fine. So aerobic respiration वो respiration होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैरीड आउट होता है, एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. ओके, तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी में हम एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं बिकॉज हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. तो वी डू एरोबिक रेस्पिरेशन. बट नाउ यू विल आस्क कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों? सो व्हाट हैपेंस मेनी अ टाइम्स, क्या होता है, जैसे सपोज हम रनिंग कर रहे हैं या हम कोई कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. सो व्हाट हैपेंस कि उस केस में हमारी बॉडी एक अमाउंट से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं दे पाती है. तो क्या होता है, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर्ड है उसकी हेल्प से ऑक्सीजन रिलीज होती है, एंड लैक्टिक एसिड भी हेल्प करता है उस केस में हमें रेस्पिरेशन में, बट वो बहुत ही कम टाइम होता है. इसीलिए जो हम बेसिकली मेन पढ़ेंगे दैट विल बी एरोबिक रेस्पिरेशन. फाइन. So students, there are basically 6 organs which are involved in the process of respiration. So first we will study about those organs. Okay, so there are basically 6 organs. Okay, so the main and the primary organ is lungs. Okay, and then nose, and then larynx, and then pharynx,
and then trachea, and then bronchi. So though there are several organs, but then these are the main organs which are involved in the process of respiration. So now I will explain you all these organs with the help of chart. Okay students, so as we talked about कि 6 organs होते हैं जो कि directly linked होते हैं respiration के process में. So now we will study all these organs one by one. So as I told you that lungs are the main primary organs. So here you can see ये आपको दिख रहा है, this is the diagram of lungs. So lungs, what are lungs? मतलब lungs को हम कैसे define कर सकते हैं? Lungs are the cone shaped organs जो कि पेयर में है. आप देखो 2 lungs हैं और ये दोनों पेयर में है. So and they are conical in shape. So lungs are cone shaped organs, which are situated in the thoracic cavity. ये जो cavity होती है जहाँ पे ये situated होते हैं इसको हम कहते हैं thoracic cavity. And इनको help किसका मिलता है? इनको help मिलता है ribs का, जो कि muscles होते हैं kind of, और इनको support करते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी. ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है, ribs, जो कि इनको support करते हैं lungs को. So now we will study the other parts जो इसमें involved होते हैं. The second is, अगर आप देखें यहाँ पे, so this is the nose, जो मैंने आपको बताया था. नोज ये पूरी नेजल कैविटी है, ठीक है, एंड ये जैसा आप सबको पता है नोज है. सो सेकेंड ऑर्गन इज नोज. थर्ड ऑर्गन इज फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारा लैरिंग्स और ओएसोफेगस में जाके नीचे ओपन होता है. एंड देन वी टॉक अबाउट लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या करता है? लैरिंग्स के ही थ्रू हम जो एयर है वो इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है. अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो क्या होता है, जब भी आप अगर खाना कभी खाओ तो खाना भी हम वहीं से खाते हैं एंड हम एयर भी वहीं से ले रहे हैं. तो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, आप देखो एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस क्या करता है? जब हम कोई चीज स्वेलो करते हैं, हम कोई खाना खाते हैं ओएसोफेगस के थ्रू, तो एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है, जिससे जो हमारा खाना है वो डायरेक्टली ओएसोफेगस के थ्रू अंदर जाए और लैरिंग्स में नहीं आए. तो ये काम है एपिग्लोटिस का, ठीक है. जैसे आप पढ़ते हैं कि जो खाना है वो डाइजेशन होता है खाने का, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा जो रोल है, ठीक है. तो एपिग्लोटिस, फाइन, ओके. एंड जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या होता है? आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पाइप आ रही है एक, ठीक है, इसको कहते हैं विंड पाइप, ठीक है, जिससे एयर हमारी अंदर आती है. तो ट्रैकिया में क्या होता है? ऐसे ऐसे सी शेप ऐसे बना होता है, ठीक है. तो ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब वो पूरा राउंड नहीं है गोल गोल, दे आर जस्ट हाफ, ठीक है, इसीलिए हम इनको सी शेप बोलते हैं, लाइक दिस. तो ये क्या करते हैं? सी शेप कार्टिलेज ये ट्रैकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो कोलैप्स ना हो जाए आपस में, ठीक है. तो ये है इनका काम ट्रैकिया को. तो ट्रैकिया क्या करता है? ट्रैकिया हमारा जो भी एयर है वो पास करने में हेल्प करता है, ओके. उसके बाद हमारा आता है यहाँ से नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें आपकी, तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई. ये 3 चीजें और हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी बाद में. बट ओके स्टूडेंट्स, बिफोर वी प्रोसीड, नाउ आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज रेस्पिरेशन? Ma'am, inhalation and exhalation of air. Yes, very good, exactly. Respiration is inhalation and exhalation of air. जो हम सांस ले रहे हैं that is O2 and जो हम बाहर exhale कर रहे हैं that is CO2. Okay, students, can you tell me how many organs are directly involved in the process of respiration? 6. Yes, very good. So though there are many organs, but like we say कि जैसे 6 organs हैं जो directly involved हैं. Fine. Okay. So can any one of you name any 2 organs from here जो मैंने अभी पढ़ाया आपको? Lungs, trachea. Yes, very good. Okay. So students, now I would like to know from you, can any one of you tell me कि इस पूरे जो respiration process है, that is inhalation and exhalation of air, इसकी working क्या है, इसका mechanism क्या है, how does it work? Can any one of you tell me? No, ma'am. Okay, so I will tell you how it works. Okay.
ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चार्ट जहाँ पे हम समझेंगे इस रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को कि आखिर होता क्या है। बट कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा राइट लंग्स होता है, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, सो दिस इज द सुपीरियर पार्ट, दिस इज द मिडिल पार्ट एंड दिस इज द इंफीरियर पार्ट, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में है। बट जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्यों, विच इज सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि राइट लंग बड़ा है या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड लेफ्ट लंग हमारा सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका रीजन ये है कि जो हमारा लेफ्ट लंग है इसी के पास में हमारा हार्ट भी सिचुएटेड होता है। तो क्या होता है, हमारे हार्ट को भी स्पेस चाहिए होती है। सो दैट इज वाई जो हमारा लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है साइज में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया मैंने आपको जैसा बताया कि ये दिस इज अ काइंड ऑफ विंड पाइप जिसके थ्रू एयर हमारी अंदर आती है। एंड देन अब यहाँ पे 3 नए टर्म्स हैं आपके लिए, इसको पहले आप समझ लीजिए। सो वन इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई दीज आर द काइंड ऑफ लाइक एयर सैक्स या एयर पैसेज होता है विच लिंक ट्रैकिया टू द लंग्स, ठीक है, जो ट्रैकिया को लंग्स से लिंक करता है। उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से तो ब्रोंक्यूल्स हैं। जैसे आप देखो ब्रोंकाई क्या है, जो चेन आ रही है, ठीक है, ये जो ये आई ब्रांच आई, दिस इज द ब्रोंकाई। जब वो ब्रांच आपस में डिवाइड हो जाए तो उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसका मतलब कि ब्रांच जो चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, क्योंकि ये आपस में और डिवाइड होते चले गए तो उनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी अगर आप जाओ तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स काइंड। तो ये है क्या, दीज आर द एयर सैक्स। इनको हम कहते हैं एल्विलाई या एल्विलस, ठीक है। सो प्लूरल इसका होता है ये, फाइन। तो ये एयर सैक्स स्ट्रक्चर होते हैं। तो अभी मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे ये वर्क करता है। डायफ्राम जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारा ये भी सपोर्ट के लिए होता है, फाइन। तो होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम एयर को इनहेल करते हैं अंदर, तो हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार ब्रीथ करो, जब आपने सांस ली तो हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी थोरेसिक कैविटी मतलब जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें स्पेस बन जाती है और उस स्पेस में ही ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये हमारी बॉडी तक पहुंच रही है और जो हमारी बॉडी से वेस्ट गैस है दैट इज CO2 वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो एयर है वो हमारी नेजल कैविटी, ठीक है, नोस्ट्रिल्स, जो हमारी नोज है, नोज के जो दोनों नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल से जो एयर है वो हमारी यहाँ से अंदर गई। अंदर जाने के बाद ये एयर, ठीक है, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद आ गई ट्रैकिया में, ठीक है। अब ये एयर यहाँ ट्रैकिया में ऐसे अंदर जा रही है और अंदर जाने के बाद ये एयर अंदर चली गई। अभी आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रक्चर अलग है, ये अलग क्यों है, तो मैंने आपको जस्ट दिखाया है। ये स्ट्रक्चर आप अज्यूम करके चलो कि ये लंग्स का इनर पार्ट है एंड ये स्ट्रक्चर जो है ये मैं आपको आउटर पार्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो आप देख सकते हो ये रिब्स हैं, ये क्या करते हैं, ये लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मसल्स होते हैं। कितनी रिब्स होते हैं, 12 रिब्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मसल प्रोवाइड करते हैं। तो काइंड ऑफ ये मैं आपको एक आउटर स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ और ये अगर आप उसका डायसेक्शन कर दो, उसको बीच से काट दो तो ये आपका इनर स्ट्रक्चर है, फाइन। तो अब क्या होता है, जो हमारी एयर थी वो ट्रैकिया के थ्रू अंदर आई। अंदर आने के बाद ये एयर ब्रोंकाई के अंदर गई, ठीक है। ये जो आप ऐसे पाइप टाइप की देख रहे हो ये एयर ब्रोंकाई में गई। ब्रोंकाई में जाने के बाद अब ये एयर धीरे धीरे ब्रोंकियोल्स में जा रही है, ठीक है। ये जो आप ब्रांच अंदर चेन्स देख रहे हो ना, डिविजन्स, ठीक है, ये एयर धीरे धीरे ब्रोंकियोल्स में गई। ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद ये एयर गई एयर सैक्स में, ठीक है। अब मेन कहानी यहाँ पे शुरू होती है, जब हमारा जो ऑक्सीजन है जो हमने लिया वो एयर सैक्स में पहुंच गई यहाँ पे, तो क्या होता है, एयर सैक्स के पूरा चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। कैपिलरीज मतलब जिसके थ्रू आपकी बॉडी से जो ब्लड है वो आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, मतलब अंदर सर्कुलेट हो रहा है।
तो ये एयर सैक्स चारों ओर से कैपिलरीज, जैसे ये एक एयर सैक्स है, ये चारों ओर से कैपिलरीज से घिरा हुआ है। तो क्या होता है, जब एयर सैक्स के अंदर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लंग्स में जाके एयर सैक्स में ऑक्सीजन गई, इसके चारों तरफ है कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर क्या है, CO2 है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी पूरा ऑक्सीजन गया था वो वापस से डीऑक्सीजनेट होके वापस लंग्स के ही पास आता है। लंग्स ही तो CO2 को बाहर निकालता है। तो ये जो कैपिलरीज हैं इनके चारों तरफ, ठीक है, ये एयर सैक्स के चारों तरफ ये जो कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज से जो CO2 है क्या होगा, अंदर आ जाएगा एयर सैक्स के अंदर एल्विलाई में, और जो ऑक्सीजन है वो एल्विलाई से कैपिलरीज में चला जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। सो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये पूरी मैकेनिज्म समझाई। तो एक चीज और मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्विलाई है, एल्विलाई चारों तरफ जो सराउंडेड होती है कैपिलरीज से, ठीक है। एंड जो ऑक्सीजन है, जो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन हमारी एल्विलाई से कैपिलरीज में चला जाता है, CO2 कैपिलरीज से वापस एल्विलाई में आ जाता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये ऑक्सीजन आ कैसे रहा है, कि कौन है इसके पीछे, कैसे ही आता है? मैं आपको बताती हूँ। हीमोग्लोबिन एक ऐसा कंटेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो ये जो हमारी बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन पूरा इधर से उधर ट्रेवल करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन हमारा आयरन से बना होता है। फाइन। एक चीज और, लाइक वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, जो मैंने आपको यहाँ ट्रैकिया बताया था, तो ट्रैकिया में जैसे यहाँ पे हमारी विंड पाइप आ रही है ट्रैकिया, और ये हमारी लंग्स में आगे आगे डाइवर्स हो जाती है, ठीक है। तो जो ट्रैकिया है उसके अंदर एक म्यूकस सा सब्सटेंस होता है, ठीक है। कभी भी देखो हम सांस लेते हैं, कितने बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में जाते हैं, तो इस तरह तो सब लंग्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो म्यूकस होता है ये जो भी बैक्टीरियाज या ऐसी कोई चीज होती है उसको अंदर ही ट्रैप कर लेता है और लंग्स में जाने नहीं देता। तो इस तरह भी इसका रोल है प्रिवेंट करने के लिए। फाइन। सो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, एंड ओके फाइन। सो आई होप आप लोग ने इस डायग्राम को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया होगा। नाउ अब मैं आपको एक बार पूरा चैप्टर रिकैप कर देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आज हमने पढ़ा है व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, जो सांस हम ले रहे हैं और निकाल रहे हैं। अब हम इनहेलेशन में क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग O2 ऑक्सीजन, एंड व्हाट वी आर एक्सहेलिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन। देन वी डिस्कस्ड व्हाट आर द organs involved in the process of respiration. So basically there are 6 main organs, जिसमें कि सबसे पहला is the lungs, because lungs is the primary most important organs जिसकी हेल्प से ही ये process of respiration complete होता है। सेकेंड मैंने आपको बताया था नोज, फिर pharynx, फिर लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, एंड देन उसके बाद आपका ब्रोंकियोल्स वगैरह हो जाता है। फाइन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पूरा एक एक जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका क्या हेल्प होता है, क्या फंक्शन होता है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे प्रोसेस में। देन आई टोल्ड यू इसकी मैकेनिज्म क्या है। जो हमारी नेजल कैविटी होती है, नोस्ट्रिल से हमारी एयर आई, वो फेरिंग्स में गई, फिर वो लैरिंग्स में गई, उसके बाद वो एयर ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया में जाने के बाद वो एयर ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकाई के बाद ब्रांच्ड चेन जो है, ब्रांच चेन मतलब ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद वो एयर एल्विलाई में गई। एल्विलाई एयर सैक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ एल्विलाई इन लंग्स। ओके, तो इसमें वो ऑक्सीजन गई, यहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस होता है O2 एंड CO2 का, जिसमें से CO2 लंग्स वापस ले लेता है, O2 लंग्स वापस भेज देते हैं हमारी बॉडी में, और उसके बाद CO2 लंग्स लेके बाहर निकल जाता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया रिब्स और डायफ्राम। रिब्स हमारा लंग्स को टोटल सपोर्ट करने का काम करता है, एंड डायफ्राम का क्या रोल होता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे थोरैसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी में स्पेस डेवलप हो जाती है, एंड ये प्रोसेस कंप्लीटली और इजीली हो पाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था रेस्पिरेशन का एंड द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। फाइन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया हो, एंड आप सबका होमवर्क है कि आप सबको ये जितने भी ऑर्गन्स हैं मैंने बताए, एंड जितने भी ऑर्गन्स टोटली इन्वॉल्व है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, आपको उन सारे ऑर्गन्स की डेफिनेशन लिख के आनी है, एंड उनका पर्टिकुलरली डायग्राम बनाना है अलग से। थैंक यू।